آج شام کلام مقدس میں سے پانی کے بپتسمہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے. گو میں بہت دفعہ اس کے اوپر پیغام دے چکا ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام لکھا ہے کہ ہر صبح تازہ ہے. ہیلیلویا، ہر صبح تازہ ہے. جب کبھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، جب کبھی آپ اس کو سنتے ہیں، جب آپ دل لگاتے ہیں کہ اس کو سمجھیں، تو وہ آپ کی قوت اور زور کا باعث بنتا ہے. ہیلیلویا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے. تو وہ زندہ کہاں پہ ہے؟ کتابوں میں نہیں. وہ زندہ ہمارے میں زندہ ہے. وہ زندہ ہمارے منہ میں ہے. وہ زندہ ہمارے ذہن میں ہے. وہ زندہ ہماری روح میں ہے، دل جان بدن میں ہے. تو آج ہم دیکھیں گے پانی کے بپتسمہ کے بارے میں، مختصر طور پر دیکھیں گے اور سیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیں مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھیں گے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اور ہیلیلویا. بس اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. تو یاد رہے کہ بپتسمہ کی رسم جتنی اہم رسم ہے، اتنی ہی موجودہ مسیحت میں یہ بگڑ چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر یا کلام مقدس میں اگر ہم اعمال کی کتاب اور خطوط سے مکاشفات تک دیکھیں تو ان کلیسیاؤں میں کبھی بھی پانی کے بپتسمہ کو لے کے کوئی کنفیوژن نہیں تھی. ریزن کیونکہ وہ اسٹریٹ اوے ان باتوں کو فالو کرتے تھے جو یسوع نے کہی تھی. کیونکہ یاد رہے کہ پانی کے بپتسمہ کی جو میجر ڈاکٹرن ہے وہ کسی شاگرد نے یا پالوس نے یا پترس نے متعارف نہیں کری، بلکہ ڈائریکٹ یسوع مسیح نے متعارف کروائی. آج ہم دیکھیں گے کہ پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے متعارف کروایا گیا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ پانی کے بپتسمہ کی مذہبی اصطلاح کو سمجھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ یہ مذہبی اعتبار سے اس کو جانیں، گو کہ یہ مذہبی نہیں ہے. پانی کا بپتسمہ مذہبی نہیں ہے، یہ روحانی ہے. تو بھی اس کو مذہبی طور سے سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بائبل کتنے عہدوں پر مشتمل ہے؟ کون سا؟ پرانا اور نیا. اور پرانا عہد نامہ جو تھا وہ یہودی قوم کے لیے تھا اور پرانے عہد کی کلیسیا کے لیے تھا. اور اگر ہم پرانے عہد کی کلیسیا کی نجات کا نشان دیکھیں تو وہ کیا تھا؟ ختنہ. یعنی اگر آپ دیکھیں تو خدا نے مرد خدا ابراہیم سے یہ عہد کیا کہ اگر تیری نسل اپنے بدنوں کے اندر ختنہ کے عہد کو جو کہ ابدی عہد رکھے گی تو وہ میرے حضور کامل ٹھہرے گی. اور جو کوئی اس نجات کے نشان کو اپنے بدنوں میں نہیں رکھے گا وہ کاٹ ڈالا جائے گا. پڑھ لیں ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور 9ویں سے 14ویں آیت تک. پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 17 9 to 14 ورس. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اس کو مانے. اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلیڑی کا ختنہ کیا کرنا. اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. ہاں، پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں. لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے. ہاں جی، غور کریں، لازم ہے، مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. ہاں جی، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے. اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا. میرا عہد تمہارے جسم میں کون سا عہد ہوگا جی؟ ابدی عہد ہوگا. اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے. ہاں جی، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا جس کا ختنہ نہیں ہوا. تو قصہ مختصر
पुराने अहद की कलीसिया को निजात का जो निशान दिया गया वो था खतने का निशान, और अगर कोई खतना ना करवाता तो लिखा है वो उसके लोगों में से काट डाला जाता। ये अहद था, निजात का निशान था पुराने अहद की कलीसिया के लिए। मगर नए अहद की कलीसिया के लिए मर्द खुदा पौलुस रसूल कहता है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, यानी किसका खतना जी? मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है और उसके साथ बपतिस्मा में दफन हुए। विच मीन्स कि जो खतना है वो मौजूदा कलीसिया नए अहद की कलीसिया के लिए तब्दील हो गया है बपतिस्मा के अंदर। तो जैसे पुराने अहद की कलीसिया खतना के बायस निजात में शामिल होती थी, नए अहद की कलीसिया पानी के बपतिस्मा के बायस निजात में दाखिल होती है। अगर पानी का बपतिस्मा नहीं तो याद रखें निजात नहीं। जैसे पुराने अहद नामा के अंदर खतना नहीं था, खुदा ने बोला वो खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे ही याद रखें कि अगर कोई शख्स पानी का बपतिस्मा नहीं लेता तो वो खुदा की निजात से खारिज कर दिया जाता है। तो खतना जो है वो मुतबादल है, यानी रिप्लेसमेंट है पानी के बपतिस्मा की, यानी पानी का बपतिस्मा खतना की रिप्लेसमेंट है। तो इस बात को याद रखना, ये एक अहम निशान है और इसको हम इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? सुने गौर से, हम इसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते, दरगुजर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारका से निकले हुए अल्फाज हैं। यीशु मसीह जब आसमान पर जाने लगे थे तो उसने बोला जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, ये पालूस का, पतरस का, यूहन्ना का, यहूदा का, याकूब का हुक्म नहीं है, ये यीशु मसीह का हुक्म है। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो असल में हम उसके हुक्म की पासदारी करते हैं। और अगर हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते किसी भी रीजन से तो याद रखें कि हम उसके हुक्म की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि ये अरशाद आज़म का हिस्सा है। और इस बात को याद रखना है कि अरशाद आज़म क्या लिखा है? सब कौमों क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। और याद रखें कि बच्चा शागिर्द नहीं बन सकता। अगर आप आज तक बच्चे के बपतिस्मे के ऊपर इनासार किए बैठे हैं तो याद रखें कि बच्चा ना शागिर्द बन सकता है ना उसका बपतिस्मा हो सकता है। बाइबल इसके अगेंस्ट बात करती है। तो याद रहे कि ये बपतिस्मा जो है इसको आज हम इसकी 4 मुख्तलिफ बातों को देखेंगे जो रूहानी आलमों में होती हैं। बपतिस्मे का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? तो सबसे पहला मकसद, गौर कीजिएगा, हमने अहद की कलीसिया है, बपतिस्मे के 4 मकासद हैं। पहला मकसद है रिपेंटेंस ऑफ सिंस, यानी गुनाहों से तौबा करना। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग आज तक पैदा हुए हैं आदम के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं वो सब गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। अगर कोई शख्स किसी बिशप के घर में पैदा हो रहा है तो वो गुनाह की हालत में है। पौलुस कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, यानी हर एक शख्स जो है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है। मुमकिन है आप में से कोई ऐसा शख्स हो जो ये बोले कि मैं गुनाह नहीं करता, मैं ईमानदार हूं, मैं पाक हूं, तो भी आप मारूसी तौर से गुनहगार हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आपके बाप आदम का गुनाह शामिल है, जिसकी मुआफी के लिए, जिससे तौबा के लिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। और अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते तो याद रखें, आप अगर उस गुनाह आलूदा फितरत से मर जाएं, या आप बपतिस्मे को कोई और रंग दे दें और इसको सोचे कि ये ठीक नहीं, या जो मैंने ले लिया बचपन में वो ले लिया, याद रखें कि वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा वही है जिसके अंदर आप अपने गुनाह का इकरार करते हैं, आप तौबा करते हैं, आप माफी मांगते हैं और फिर आप उस बपतिस्मे में दाखिल होते हैं। क्या रेफरेंस मिलता है? अमाल की किताब उसका 2 बाब, और पढ़ें जी जरा उसकी 37 से 38 वर्स, 37 और 38 आयत पढ़ें जरा, क्या लिखा है? जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। हाँ जी, क्या बोला? जब दिल पे चोट लगी पतरस ने क्या बोला? क्या करो? तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए क्या करे? यीशु के नाम पे बपतिस्मा ले।
बच्चा तौबा नहीं कर सकता, बच्चे में ये सलाहियत ही नहीं कि वो तौबा कर सके। तौबा वो शख्स कर सकता है जो नेकी और बदी में इम्तियाज करना जानता है। तो इसलिए इस पहले मकसद के अंदर याद रखें कि जब तक आप तौबा नहीं करते आपका बपतिस्मा नहीं है। दूसरा मकसद है पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ योर फेथ, यानी आपके ईमान का एलानिया इकरार। आपके ईमान का एलानिया इकरार। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो असल में हम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, खुदावन यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, वो मेरे गुनाहों की खातिर दफन हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा, किबरिया के दाने हाथ जा बैठा है और बहुत जल्द मुझे लेने के लिए आने वाला है। ये पब्लिक डिक्लेरेशन है आपकी बपतिस्मे के वक्त। आप इकरार करते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है। रेफरेंस कहाँ मिलता है? निकालें जी जरा अमाल की किताब। ये रेफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये बाइबल में बातें लिखी हुई हैं। अमाल की किताब उसका 8वां बाब पढ़े जी जरा 36 से 38 आयत तक क्या लिखा है। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जी हाँ, यहाँ पर वो इकरार करता है कि मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह कौन है जी। और अगर हम रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जलाया है तो निजात पाएगा। हालेलुया, तो निजात पाएगा। यानी मुंह से इकरार करना जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात बोली, अगर हम मत्ती की अंजील देखें तो वहां पे यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा, और जो कोई आदमियों के सामने मेरा इंकार करेगा मैं भी उसका इंकार करूंगा। आप जानते हैं कि जब हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते तो असल में हम उसका इंकार करते हैं। रीजन कोई भी हो, हम इंकार करते हैं। लेकिन जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम इकरार करते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मेरा मखलसी देने वाला है, यीशु मेरा छुड़ाने वाला है, और इस इकरार के बायस हम निजात पाते हैं। फिर कहूंगा, बच्चा इकरार नहीं कर सकता। क्या कोई बच्चा इकरार कर सकता अपने गुनाह का? गुनाह का इकरार वो कर सकता है जो गुनाह को जानता है। तो याद रखें कि जब हम इकरार करते हैं तब हम इस निजात के अंदर दाखिल होते हैं। तीसरा मकसद है बरीड योर ओल्ड नेचर, यानी अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करना। तो तीसरा मकसद है, हमें अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करते हैं जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और इंसानियत को दफन करना ही बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, यानी जो नए सिरे से पैदा होने की डॉक्ट्रिन है वो यही है कि अपनी पुरानी इंसानियत को दफन कर लेना। और आप जानते हैं कि ये डॉक्ट्रिन भी जो है ये पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने या किसी रसूल ने मुतारफ नहीं कराई। आप जानते हैं नए सिरे से पैदा होने की जो डॉक्ट्रिन है ये खुदावंद यीशु मसीह ने मुतारफ करवाई है। अगर आप देखें यूहन्ना की अंजील के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे थे तो निकोदेमस से गुफ्तगू के दौरान, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब देखें तो उससे गुफ्तगू के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त पहली बार, और ये पहली और आखिरी बार बाइबल में यहीं सिर्फ मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी को नए सिरे से पैदा होने की बात करते हैं। और बात किससे कर रहे हैं? यहूदी कौम के एक जबरदस्त आलम से जो उस वक्त का हाई प्रीस्ट था, सरदार काहिन था निकोदेमस। और खुदावंद यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को रात के अंधेरे में चुपके से मिलने आया। आज बहुत से मसीही खुदावंद यीशु मसीह को रात के अंधेरे में चुपके से मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ओपनली मिलेंगे तो इकरार करना पड़ेगा, वो ओपनली मिलना नहीं चाहते। जब आप ओपनली यीशु को मिलेंगे तो आप दिल से इकरार करेंगे। हालेलुया। तो निकोदेमस जो था उसको निकाल लें। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब, यहां पर निकोदेमस से गुफ्तगू के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने नए सिरे से पैदा होने की डॉक्ट्रिन को मुतारफ कराया। पढ़े जरा पहली आयत से क्या लिखा है जी। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है
क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। जी हाँ, तो रुक जाए यहाँ पर निकोदेमस वो एक ऐसा शख्स था जिसने खुदावंद यीशु मसीह की अलहुइयत, उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसका जोर, उसके मौजज़ात का चर्चा सुन रखा था कि यीशु कोई एक ऐसा शख्स है जो बड़ी जबरदस्त कुव्वत रखता है, और ये जानता था कि ये जो काम कर रहा है ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और जब वो यीशु मसीह को मिलने आया है तो मिलते वक्त भी उसने अपने ईमान का इजहार किया है कि जो कुछ तू करता है ये कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। इसको पता था कि यीशु कौन है, ये जानता था कि यीशु कोई आम शख्स नहीं है, ये जानता था कि यीशु के साथ खुदा है, मगर ये उससे रात को मिलने आया। क्यों? क्योंकि फरीसियों से डरता था, यहूदियों से डरता था, कौम से डरता था, कौम के बुजुर्गों से डरता था। आज हम में बहुत से मसीही जानते हैं बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? वो डरते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। और यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप बहन भाइयों को अजीज रखेगा वो मेरी बादशाहत के लायक नहीं। याद रखें, यीशु को कबूल करने में हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो, यीशु साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं। हालेलुया। तो ये रात को जब खुदा यीशु मसीह से मिलने आए, खुदा यीशु मसीह ने से बड़ी बातें करते हुए बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह कहते हैं। जब यीशु मसीह ने से बोले, जी 4 आयत से पढ़े जरा, क्या लिखा है, बल्कि 3 आयत से पढ़े। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को हाँ जी, यहाँ पर पहली बार पूरी बाइबल के अंदर, और इसके बाद भी आप मुकाशवत देख लें, ये बात कहीं नहीं मिलेगी आपको। नए सिरे से पैदा होने की डॉक्ट्रिन सिर्फ यीशु ने मुतारफ करवाई है। यीशु से कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को दाखिल होना दूर है, देख भी नहीं सकता। आप जानते हैं देखने के मायने क्या है? हम सब जो है, जितने लोग ईमानदार हैं, निजात में दाखिल हो चुके हैं, वो हर रोज खुदा की बादशाहत को देखते हैं। कैसे? उसके मौजज़ात के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से, खुदा की कुदरत के वसीला से, खुदा की हजूरी के वसीला से हम हर रोज उसकी बादशाह देखते हैं, और देखते देखते एक दिन बादशाहत में दाखिल होंगे। मगर जो बपतिस्मा नहीं लेता, यीशु कहता है वो देख भी नहीं सकता, यानी वो इस बदन में उस एहसास को जानता ही नहीं कि रूहुल कुद्स क्या है, यीशु कौन है, खुदा का भेद क्या है, पाकरू क्या है, वो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। आगे पढ़े जी, क्या लिखा है? निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि पानी यानी पानी का बपतिस्मा और रूहुल कुद्स के बपतिस्मा से जब तक कोई पैदा ना हो वो बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। आप जानते हैं, जब हम आगे जाके देखेंगे कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हमें रूहुल कुद्स इनाम में मिलता है। तो जब तक पानी का बपतिस्मा नहीं, रूहुल कुद्स भी नहीं है। आगे पढ़े जी, क्या लिखा है? जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? रुक जाए, यहाँ पे हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे रुक जाए। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैंने तुमसे जमीन की बातें कहीं तो तुमने यकीन ना किया। बोले तुमने यकीन ना किया, और अब जब मैं तुमसे आसमान की बातें करता हूं तो क्यों कर यकीन करोगे? तो पानी का बपतिस्मा जमीन की बात नहीं है, पानी का बपतिस्मा रूहानी आसमानी बात है। हालेलुया।
ये आसमान से मुकाशवा मिला है यीशु के वसीला से। यह आसमानी बात है, जमीनी बात नहीं है। पानी का बपतिस्मा इंसानी सोच नहीं, पानी का बपतिस्मा इंसानी अक्ल नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट खुदा का मुकाशवा है जो नए ऐद की कलीसिया को मिला है। ये आसमानी बात है। हाँ जी, आगे पढ़े। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। जी हाँ, सुन ले इस बात को बड़े गौर से। खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मे की बात कर रहे हैं। गौर करें जरा, सुने, मेरी तरफ ध्यान करें। बपतिस्मे की बात चल रही है और साथ ही खुदावंद यीशु मसीह सलीब की बात लेकर आ गया। ऐसे ही ना, यीशु मसीह कहता है जैसे तुम मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया, तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर देखोगे। बात बपतिस्मे की चल रही है, यीशु मसीह सलीब बीच में ले आए हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बपतिस्मे का हकीकी मायने रूहानी आलमों में क्या है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो रूहानी आलमों में हम अपनी पुरानी इंसानियत को पानी की कब्र में दफन करते हैं, यानी हम यीशु के साथ मरते हैं। और जैसे यीशु मसीह दफन हुआ, हम भी दफन होते हैं। और फिर रूहानी आलमों में जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बपतिस्मे के वसीले से हम पानी से बाहर आते हैं तो हम उसके साथ जी उठते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मे की बात करता करता सलीब पर क्यों ले आया? क्योंकि बपतिस्मा जो है वो एक ऐसी मश्क है, ऐसा रूहानी अमल है जिसके बायस हम यीशु के साथ मसलूब होते हैं, हम यीशु के साथ दफन होते हैं, हम यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठते हैं। और जब हम जी उठते हैं, हम उसके साथ बादशाहत में दाखिल होते हैं। इसलिए पानी का बपतिस्मा याद है। और इसकी कंप्लीट डॉक्ट्रिन बाद में पौलुस बताता है। निकाले जरा मेरे साथ रोमियो का खत, रोमियो का खत और उसका छठा बाब, छठे बाब की पढ़े जी पहली आयत से। जो बात खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहे थे, उसकी थियोलॉजी रोमियो में पौलुस ने बता दी, उसकी एक्सप्लेनेशन पौलुस ने बताई है। पढ़े जरा पहली आयत से। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस रसूल ने इस बात पे मोहर कर दी, इस बात की तस्दीक कर दी, इस बात को उसने साबित कर दिया कि बपतिस्मा मसीह के साथ सलीब पर मसलूब होना है, बपतिस्मा मसीह के साथ कब्र में दफन होना है, बपतिस्मा मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठना है। हालेलुया। तो जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, ना तो हम उसके साथ मसलूब होते हैं, ना हम उसके साथ दफन होते हैं, ना हम उसके साथ जी उठते हैं। तो याद रहे कि ये एक अहम रस्म है जो कि आसमानी मकामों से यीशु की मार्फत हमें मिली है। और याद रहे कि जब हम यीशु मसीह के साथ मसलूब होते हैं, तो असल में हम मसलूब नहीं होते, बल्कि हमारी पुरानी इंसानियत मसलूब होती है। और उस मसलूबियत के दौरान हमारे दिल का खतना किया जाता है, उस मसलूबियत के दौरान हमारे ज़हन का खतना किया जाता है, उस मसलूबियत के दौरान हमारी बुरी सोचों का खतना किया जाता है, उस मसलूबियत के साथ हमारी पुरानी इंसानियत का खतना किया जाता है, हमारे नापाक चाल चलन का खतना किया जाता है, हमारे पुराने इंसान को दफन किया जाता है, ताकि हम मसीह में नई मखलूक बन सकें। इसलिए याद रहे कि ये रस्म जितनी अहम है उतनी ही बिगड़ चुकी है। इब्लीस नहीं चाहता कि लोग इस बड़े भेद से वाकिफ हों। आज मसीहत का एक बड़ा हिस्सा इस बड़ी और खूबसूरत और गहरी डॉक्ट्रिन से गाफिल है। लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते कि इसकी अहमियत क्या है। और फिर अगर हम देखें चौथा और आखिरी मकसद क्या है, चौथा और आखिरी इसका मकसद है बपतिस्मा हमारे रूहानी आलमों में हमें
बाप इब्राहिम की नस्ल में शामिल करता है। आप जानते हैं कि हम जिस्मानी एतबार से गैर कौम वाले हैं, और यहूदी कौम जिस्मानी एतबार से किसकी नस्ल है जी? इब्राहिम की नस्ल है। मगर आप जानते हैं कि पानी का बपतिस्मा जो है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम रूहानी तौर से बाप इब्राहिम की नस्ल में वादे के फर्जंद ठहरते हैं। और यह बपतिस्मा दो काम करता है। पहले जो हमने 3 बातें छोड़ी, उसके बाद 2 खास काम है। पहला खास काम, पानी का बपतिस्मा हमें खुदा के फर्जंद बनाता है। क्या बनाता है जी? खुदा के फर्जंद, यानी खुदा के बेटे। और दूसरा अहम काम, यह हमें इब्राहिम की नस्ल में शामिल करता है। निकालें जरा गलातियों का खत, उसका 3रा बाब। गलातियों का खत, उसका 3रा बाब पढ़े जरा 26 से 29 आयत तक क्या लिखा है। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। हाँ जी, सुनते जाएगा, ध्यान कीजिएगा। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह में क्या है जी? खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। और अगर तुम मसीह में हो, अगर तुम मसीह में हो तो क्या हो जी? इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस। वादा के फर्जंद हो। वादा का फर्जंद जानते हैं कौन था? इसहाक। इसहाक वादा का फर्जंद था। इस्माइल वादा का फर्जंद नहीं था। वो जिस्मानी अक्ल से था, जिस्मानी सोच से था, जिस्मानी इरादा से था। लेकिन वादा का फर्जंद कौन था? इसहाक। जब हम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो कलाम कहता है कि तुम उसकी नस्ल में, यानी इब्राहिम की नस्ल में और वादा के मुताबिक वारिस हो। आप जानते हैं कि जो यहूदी कौम का वजूद इब्राहिम से 400 साल बाद वजूद में आया। इब्राहिम 400 साल पहले था मूसा से, यानी यहूदी कौम जो थी उसका वजूद हमें मूसा के दौर से नजर आता है। ऐसे ही है, इब्राहिम 400 साल पहले यहूदी नहीं था, ना इब्राहिम इस्राएली था। याद रखें, इब्राहिम इब्रानी था। और इब्राहिम की निजात की वजह क्या थी? सबसे पहली वजह थी कि वो ईमान लाया। दूसरी वजह वो जो खतना के अहद में शामिल हुआ। पहली वजह क्या थी जी? ईमान। दूसरी क्या लिखे कि पास इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। यानी वो गैर कौम में से था, वो यहूदी नहीं था, इस्राएली नहीं था, बल्कि गैर कौम में से था। मगर ईमान के बाइस वो रास्तबाज ठहरा और फिर खतना के अहद के बाइस वो निजात में दाखिल हुआ। हम सब यहूदी नहीं हैं, हम सब इस्राएली नहीं हैं, हम सब ईमान के वसीला से और पानी के बपतिस्मा के वसीला से निजात में दाखिल होते हैं। हालेलुया। तो याद रखें कि इब्राहिम की नस्ल में हम इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि इब्राहिम का जो किरदार था वो गैर कौमों में से आया हुआ किरदार था, मगर उसके ईमान ने उसको निजात बख्शी। आज हम भी ईमान के बायस से निजात पाते हैं, और जैसे वो खतना के बायस से निजात में दाखिल हुआ, इस तरह से हम पानी के बपतिस्मा के बायस जो है वो निजात में दाखिल होते हैं। और याद रखें कि आलम दीन इस एक अमल को थियोलॉजिकल रूहानी विरासत कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये रूहानी विरासत है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। ये रूहानी विरासत है कि हम बाप इब्राहिम, आप जानते हैं इब्राहिम को क्यों बाप कहा जाता है ईमानदारों का? उससे पहले भी नूह था, हनूक था, कई ईमानदार थे। पढ़ते हैं ना, हनूक पहले था, नूह भी पहले था, लेकिन इब्राहिम क्यों बाप कहलाता है? क्योंकि इब्राहिम गैर कौमों में से आके उसने ईमान रखा, और जो उसका ईमान था उसके बायस वो ईमानदारों का बाप ठहरा। तो याद रखें कि मैं और आप जब इब्राहिम की तरह ईमान रखते हैं, इब्राहिम की तरह वादे का इंतजार करते हैं, इब्राहिम की तरह जैसे वो खतने के अहद में शामिल हुआ, हम बपतिस्मे के अहद में शामिल होते हैं, तो हम इब्राहिम की तरह वादे में निजात में दाखिल होते हैं। तो चौथा और आखिरी जो अहम मकसद है वो हम इब्राहिम की नस्ल के अंदर शामिल होते हैं। पढ़े जरा गलातियों का खत, उसका 3रे बाब की पढ़ लें जरा 6 से 8वीं आयत में क्या लिखा है।
गलतियों 3, 6 से 8। चुनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हाँ जी, कहता है बस जान लो कि जो कौन है जी? ईमान वाले। इसमें कौम, कौमियत, नस्ल, रंग, फिरका कुछ नहीं है, लिखा है ईमान वाले। आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं, आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप ईमान रखते हैं आप ईमान वाले हैं। और किसके ईमान के वसीला से इब्राहिम के फर्जंद हैं। आगे, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। हाँ जी, रुक, मुझे बड़ी खास बात है, याद रखें, मैं और आप कल के बारे में नहीं जानते कल क्या होना है, लेकिन खुदा जानता था कि हजारों साल बाद यीशु के वसीला से गैर कौमों ने निजात पानी है। उसने आने वाले वक्त को जानते हुए, किसने? खुदा फोरसियर है, वो आने वाले वक्तों को जानता है। उसको पता था कि बेशुमार कौमों ने आना है और यीशु के वसीला से निजात पानी है, और उसने इब्राहिम को यह बरकत दी कि तेरे वसीला से बहुत सी कौमें बरकत पाएंगी। यानी जब वो कौमें पानी का बपतिस्मा लेंगी तो वो रूहानी आलमों में, तेरी विरासत में, तेरी नस्ल में शामिल होंगी। हालेलुया। अब पढ़े, अब आपको समझ आएगी। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ क्या है जी? बरकत पाते हैं। जो कोई पानी का बपतिस्मा लेता है ईमान के साथ, वही बरकत पाता है, वही रूह कुदस में शरीक होता है, वही खुदा की बादशाहत को देखेगा, वही बादशाहत का हिस्सा होगा, वही इब्राहिम का बेटा होगा, वही यीशु मसीह के वसीला से उसकी बादशाहत का हिस्सा बनेगा। तो याद रखें कि मैं नहीं जानता यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। आप कलाम को कभी भी इस अंडरस्टैंडिंग से ना सुने कि आपको बहुत कलाम आता है। ये देखें कि ये बातें कौन कर रहा है, किसने ये बातें बताई हैं। हमारे बुजुर्गों की अगर हम बात करें, अर्ली चर्चेस के बाद जो चर्चेस वजूद में आए, उन्होंने इस तालीम को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। आज लोग इस तालीम से हट गए, लोगों ने अपनी डॉक्ट्रिन्स बना ली है। लेकिन याद रखें, मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं उसमें से एक एक बात कलाम में से है। कोई रस्मी या बुजुर्गों की बात नहीं है, कोई रवायती बात नहीं है। पानी का बपतिस्मा यीशु के वसीला से मिलता है। पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह ने खुद लिया, 30 साल की उम्र में लिया। उसने अपने शागिर्दों को यही हुक्म दिया, उसने अपने शागिर्दों को इरशाद आज़म का ये हुक्म दिया कि वो कौमों को शागिर्द बनाए। उसने ही नए सिरे की डॉक्ट्रिन को मुतारफ करवाया। और हमें क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए इसमें? और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए? और फिर आखिरी बात यही बताऊंगा कि वो बपतिस्मा जिसको आज इस दुनिया में बहुत प्रमोट किया जाता है, उसका इस किताब मुकद्दस में वजूद ही नहीं जो बच्चे का बपतिस्मा है। कोई एक शख्स मुझे कलाम मुकद्दस की इन 66 किताबों में से या नए अहदनामा की 27 किताबों में से एक हवाला निकाल के बताए जहां पे किसी बच्चे ने पानी का बपतिस्मा लिया हो। यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, और 4 पॉइंट जो हमने सीखे उनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं जो किसी बच्चे के लिए हो। ना बच्चा तौबा कर सकता है, ना बच्चा पब्लिकली डिक्लेरेशन दे सकता है अपने फेथ की, ना बच्चा अपनी पुरानी इंसानियत को दफन कर सकता है, ना बच्चा इस बात का इकरार कर सकता है कि यीशु मेरा निजात दहिंदा। तो फिर किस बात का बपतिस्मा? याद रखें, यीशु मसीह ने इस डॉक्ट्रिन को क्लियरली एक ऐसे शख्स के लिए जो कि अडल्ट हो, जिसको नेकी और बदी का पता हो, जो अपने गुनाहों का इकरार कर सके, जो मसीह के साथ मसलूब हो सके, जो मसीह का इकरार कर सके और इब्राहिम की नस्ल में शामिल हो सके, उनके लिए बपतिस्मा करार दिया गया है, ना कि किसी बच्चे के लिए। और मैं कभी कभी सोचता हूं खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। बाइबल कहती है उसकी जात में भी गुनाह नहीं था, ना उसकी पैदाइश में गुनाह था, और मरते दम तक उसकी जात जो थी वो गुनाह से पाक थी। फिर भी उसने क्यों बपतिस्मा लिया? क्योंकि यीशु जानता था
कि इस रस्म को बिगाड़ा जाएगा। और आप सोचें कि उसने नमूने के तौर पर बपतिस्मा लिया ताकि हम उसको देख के एटलीस्ट उसको फॉलो कर सके। लेकिन अफसोस कि आज जितनी स्ट्रीमलाइन डिनोमिनेशंस हैं वो उसको देखकर भी उसको फॉलो नहीं करती। आई एम सॉरी अगर मेरी बात किसी को हर्ट करे, मैं खुदा का खादम हूं, मैं कलाम की बात करता हूं, सच्ची करता हूं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, क्योंकि मैं एक दिन जवाब दूं। जो बात मैं जानता हूं मैंने एक दिन जवाब देना खुदा को। सच्चाई यही है कि जितनी स्ट्रीमलाइन डिनोमिनेशंस हैं उन्होंने बपतिस्मे की रस्म को बिगाड़ के रख दिया। क्यों? क्योंकि इब्लीस जानता है कि जो और मैं आपको गवाही देता हूं, यहां पे कुछ शख्सियात बैठी हैं, मैं उनको कहता हूं कि बपतिस्मे से पहले उनके हालात कुछ और थे। हालात, मैं रूहानी हालात की बात कर रहा हूं। जैसे ही वो बपतिस्मे में दाखिल हुए हैं उनके चेहरे की रौनक बदल गई है। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स मिल गया है। हालेलुया, खुदा का इल्म हो गया है, पाक रूह के साथ शामिल हो गए हैं, खुदा के साथ चलना शुरू हो गए हैं। और खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से रूहुल कुद्स का फल जब हमें मिलता है तो हम बरकत पाते हैं। और जब तक बपतिस्मा नहीं लेते, याद रखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पतरस ने बोला कि जाओ तौबा करो तो रूहुल कुद्स क्या पाओगे जी। तो जब तक तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेंगे, मत सोचे कि आपको रूहुल कुद्स मिल सकता है। रूहुल कुद्स उसी वक्त मिलेगा जब हम तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे। जैसे ही बपतिस्मा लेंगे, कलाम क्लियर कहती है कि रूहुल कुद्स इनाम में मिल जाएगा। तो जितने लोग यहां पर अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कमिंग फ्राइडे हम पानी के बपतिस्मे देंगे। और कलाम बार बार एक ही बात कहता है कि जब कभी तुम खुदावंद की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। छोड़ दे आपकी सराउंडिंग में क्या है, छोड़ दे कौन क्या कहेगा, ये देखें कि खुदावंद क्या देखता है, खुदावंद क्या कहेगा। और कलाम के हुक्मों को पूरा करना हमारे लिए जरूरी है। कमिंग फ्राइडे हम शाम 6 से 7 बजे पानी के बपतिस्मे करेंगे। जिन लोगों ने अपना नाम लिखवाया वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखवाया वो मुझे अपना नाम लिखवाए ताकि हम उनको पानी का बपतिस्मा दे सके। प्रेज गॉड, खुदा हम सबको बरकत दे।